चलिए let us start. So welcome to class 8. So class 8 में एक तो एक्सरसाइज जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो आपको मैंडेटरी बिफोर टाइम यू हैव टू सबमिट विदाउट रिमाइंडर. ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है क्योंकि आप लोग का स्कोर्स कम आने का रीजन मुझे पता चल गया बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस. So good afternoon and welcome to new class 8. So first chapter is rational number. That's what we have studied in class 7, correct? Hi Anna, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, chale rational number. If I talk about numbers, सबसे पहला number कौन सा है everyone? सबसे पहला number means numbers में types. तुम्हारा माइक बंद है. आवाज नहीं आ रहा है. सो सबसे पहले काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5. Natural number. दैट इज नोन एज अ काउंटिंग नंबर्स, नोन एज अ नेचुरल नंबर्स. फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमने स्टडी किया? क्या बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो. Whole numbers. होल नंबर्स. जीरो ऐड कर दो तो होल नंबर्स. आफ्टर होल नंबर्स हमने स्टडी किया था कौन सा वाला? व्हाट वाज द Integers. इंटीजर्स. सो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी नेगेटिव नंबर्स है उसमें ऐड कर दिया तो इंटीजर्स बन गया. फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिसमें p and q are integers, but make sure q is not equals to 0. Denominator cannot be 0, otherwise it's a undefined. So it's a rational number is in the form of p by q, where p and q both are integers. q is not equals to 0. ये भी हमने स्टडी किया था. कुछ फॉर एग्जाम्पल 5/8 -3/14. तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, करेक्ट. -6 by -11 इज ऑल्सो रेशनल नंबर. क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है? अरे सर्वम, इतना मूवमेंट क्यों हो रहा है? बैठ के पढ़ो. Is 0 is a rational number or not? It is rational number. Yes, it is a rational number because 0 can be written as 0 by 1, which is in the form of numerator and denominator. Every natural number is rational number. True or false? Yes, sir. True. True. Every rational number is also natural number. True or false? False. False. Every natural number is a rational number, but every rational number is not natural number. उसी तरह every whole number या every integer is a rational number, but all rational number is not an integer. फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है? Is है. Fraction is also rational number. Tell me, which of the following is not a rational number? 5/0. B 5/0. This is rational number. This is 5/0 is not. 7/1, 1/7. ये क्यों नहीं है?
Sir, not defined. 0 can't come in denominator. p बाय q फॉर्म में होना चाहिए, वो है। p एंड q इंटीजर होना चाहिए, वो भी है। बट q इज नॉट सपोज टू जीरो, दैट्स वाई दिस इज नॉट रेशनल नंबर। फिर उसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? सर, जिसमें both जिसमें numerator and denominator have same sign. Numerator and denominator both have same sign. It may be positive, it may be negative. For example, 5/7 या -2/3। तो ये लिखना है तो बुक में लिखो। चलो, सबसे पहले तो रेशनल नंबर का टाइटल लिखो, ये लिखो, ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला नहीं, इसका डेफिनेशन। रेशनल नंबर्स are the numbers in the form of p by q where, अरे विवन जल्दी लिखो, अभी पेन ढूंढने मत बैठो। रेशनल नंबर का डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, q is not equals to 0, they are known as rational numbers. done. Yeah. Arath, switch on the camera. बीच बीच में मैं देखता रहूंगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर में ये लिखो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। A rational number is said to be positive if its numerator and denominators are either both positive या both negative, that means same sign. तो नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? What is the negative rational number? Sir, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator nor both positive Of or both different sign, negative. of opposite sign. A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite signs. Note down this. That is known as a negative rationals. A rational number having different sign in numerator and denominator, that is known as a negative rationals. For example, -4/9 या 5/-12,
So their numerator and denominator have different sign. Chalo, which one is the answer? You read and tell me the answer. Sarvam, switch on the camera. Don't switch off. Camera has to be switch on C. only. C, only 3. For any two rational numbers x and y, which of the following is or are correct if x is positive and y is negative? Which one is correct? Sir, C. Answer is C, only 3. Why not 1? X is Because it would be only possible if x would be negative and y would be positive. so x is greater than y. X is positive, y is negative. It means x is greater than y. तो ये तभी होगा. Therefore, only 3. C is the answer. चलो नेक्स्ट. रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी नंबर 1. नोट डाउन दिस कि अगर मानो a बाई b कोई रेशनल नंबर है एंड इफ m इज नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के कोई है एनी इंटीजर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी नंबर 1. If a by b is the rational number and m is non-zero integer, then a by b equals to a multiplied by b upon b multiplied by a multiplied by m upon b multiplied by m. We can multiply by m. The value will remain same. तो ये जो नया बनेगा उसको क्या बोलेंगे? नया रेशनल नंबर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते थे हम लोग? कुछ बोलते थे ना कि ये नया जो रेशनल नंबर बना दैट इज नोन एज फॉर एग्जाम्पल सपोज -3/4 इज अ रेशनल नंबर. उसको मैंने नॉन जीरो इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी किया डिनोमिनेटर को भी किया, तो नया रेशनल नंबर मिला मुझे -9/12. तो -9/12 और -3/4 ये दोनों क्या रेशनल नंबर है? फॉर एग्जाम्पल -3/4, -6/8, -9/12, -12/16 ये सब क्या है एक दूसरे के?
इसको क्या बोलेंगे एक दूसरे के? Equivalent rational numbers. तो उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोलेंगे. So such rational numbers are known as equivalent rational numbers. अरे सर्वम, तुम्हारा ध्यान यहाँ है कहीं और है? हाँ? Are you here or somewhere else? Here only. वो तो फिजिकली दिखता है लेकिन मेंटली नहीं है. No, no, वो मम्मी कुछ पूछ रही थी इसीलिए. Next property. If a by b is a rational number and m is a common divisor, यानी common factor of a and b, then we can divide numerator and denominator by m also. This is your second property. अरे लिखो भाई, तुम महाभारत कथा सुनने नहीं आया विवान? तुम क्या कथा सुनने आया क्या? भागवत कथा चल रहा है मुरारी बाबू की? विवान, और वो भी म्यूट कर दिया लगता है. सुन रहा है नहीं सुन रहा है? तो लिखो भाई. For example, minus 32 by 40. So we can divide by 8. Which are the chalo, give me the answer. Which of the following are not equivalent rational numbers? Sir, can you wait for a second? Last slide. Sir, done. So Vivan, give me the answer. अरे सर्वम, तू खाना बाद में खाना, अभी साइड में रख दे उसको. या विवान, व्हाट इज द आंसर? अभी ये सब तो फटाफट होना चाहिए, थोड़ा फास्ट. बोलो. पहला वाला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है. दूसरा वाला बी फॉर बॉम्बे. सी फॉर कलकत्ता. नहीं है. एंड डी फॉर दिल्ली. अरे ए बी सी नहीं है. कौन सा वाला नहीं है? विच इज द राइट आंसर? सेकंड बी फॉर बॉम्बे. तुम्हारा नेक्स्ट टाइम माइक ठीक करवा लेना भाई, लैपटॉप रिपेयर में दे दो.
Yeah, Ara, what is the answer? सर डी। D. ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? है। तो -8/-32, उसको दोनों को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे? -8 से। तो 1/4, तो ये दोनों इक्विवेलेंट तो हो गया भाई। उसी तरह इसको -3/4 एंड 9/-12, उसको डिवाइड करो -3 से, तो ये हो जाएगा -3/4, अगेन इक्विवेलेंट। सेम वे दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट नहीं है वो है डी फॉर दिल्ली। क्या विवान, तुम तो बोल रहा है ABC B आ रहा था आंसर। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था रेशनल नंबर में? इसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद क्या सीखा था? Rational numbers on number line. अरे सर्वम, तुम उसको साइड में छोड़ के आ जाओ नीचे। नेक्स्ट हमने सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? क्या सब कुछ भूल गए तुम लोग? 7th में जो पढ़ाया था वो सब भूल गए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है? सबसे बेसिक फॉर्म। किसको बोलते हैं? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है -8/-32? नहीं सर, वो और रिड्यूस हो सकता है। Okay, -3/4 is -3/4 is standard form. यस सर। Is Yes, sir. is 3/-4 is standard form. हाँ या ना? नो सर। Why? सर क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं हो सकता। So पहले तो कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होना चाहिए, और दूसरा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। So standard form of rational number A/B is said when A and B are integers having no common divisor, no common factor other than 1, and B is positive. Note down this standard form का definition. Standard form of rational number, a rational number P by Q या A by B is said to be in standard form if A and B are integers having no common factor other than 1 या common divisor other than 1,
एंड बी इज पॉजिटिव, यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना जरूरी है, नेचुरल नंबर होना जरूरी है. b is denominator is supposed to be natural number. If it is not natural number, multiply by -1 कर दो. 3 by -4 is standard form or not standard form? Is it standard form or not standard form? हाँ, उसको साइड में रख क्या भाई? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? हाँ या ना तो बोलो. नहीं है सर. तो क्या करने से होगा? नहीं है सर. हाँ, तो अभी खाना बंद करेगा तो सही है बोलेगा सर. ना तू. खाता रहेगा तो कहाँ बोलेगा? तो क्या करने से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? सर -1 से मल्टीप्लाई करके. किसको? हाँ सर. किसको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. अरे दोनों को. एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा चलेगा. सो स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी -3/4. 3/-4 का स्टैंडर्ड फॉर्म इज -3/4. -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म. चलो. सर -9/4. तो कैमरा ऑन कर. कैमरा ऑन कर भाई. सर ऑन ही है. नहीं दिखता है हमको. सर देखो ये बंद हो गया अभी. हाँ, तो चालू कर उसको. सो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 36 एंड 24 का कॉमन फैक्टर क्या है विवान? 4. और कोई नहीं है? 6 नहीं है? 9. तो फिर तो 6 से डिवाइड करो. म्यूट. 6/-4. और भी तो और भी है ना. और 2 से डिवाइड करो तो 3/-4. फिर मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1. तो ये हो जाएगा -3/4. तुम्हारा क्या आंसर आया था सर्वम? सर -4 2 से डिवाइड होके -2 नहीं होगा? पता नहीं, आप जो बोलेंगे वो लो. -2. जाग रहे हो सो रहे हो वो भी तो मुझे पता चले. सर्वम तुम्हारा क्या आंसर आया था?
सर -6/4। तो फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकता तू। -6/4 के बाद और नहीं कर सकता, डिवाइड बाई 2। हाँ, चलो कन्वर्ट टू दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये सब सीखा फिर भी आप लोग को बार बार सिखाना पड़ता है? कुछ नया सीखने का ना यार, एक बार सीख लिया फिर क्या बार बार सीखते रहने का। Three by four. 3/4। फोटो मोकलवाना सर। Its camera is not working. सर 2/3। 2/3। ये क्या अलग अलग आंसर? Sir, 2/3. सर 2/3। 2/3। What is the answer, Vivan? क्या आशिक 3/4 क्यों है? बताओ कैसे किया? हाँ सर, सर पहले माइनस माइनस साइन कैंसिल करती हूँ। ओके चलो, प्लस प्लस हो गया, फिर तो 12/18 हो गया, फिर तभी सिंप्लीफिकेशन किया हाँ तो करवाओ ना, तो 12/18 को सिंप्लीफाई करो। तो 3/4 आया। हाँ तो कैसे 3/4 आया, किससे डिवाइड किया? 2 को कट करके 6 किया, 18 को 8 किया, 6 को 3, 18 अच्छा, को 18 4। को 8 किया, वेरी गुड। ये 12 को किससे डिवाइड किया? हाँ? क्या ये सब गलती करते रहते हो? क्या ये? सिक्स टू ज़ा 12, 9 टू ज़ा 18, तो 6/9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 2/3 आएगा। कहाँ 3/4 आ रहा है? Next, property number 3. If two rational number a by b and c by d are the two rational number, then if they are equal, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं like this. A multiplied by d equals to b multiplied by c. If it is equal. So third property is if a by b and c by d are two rational number and they are equal, then a cross d equals to b cross c. Cross multiply, numerator multiply by denominator, दूसरे का numerator, second numerator, first denominator. Then next we learn comparison. तो सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। उसी तरह एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। नोट डाउन दिस,
every positive rational number is greater than 0 and every negative rational number is less than 0. ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, विच वन इज लार्जर विच वन इज स्मॉलर. हाउ टू डू दैट? कैसे करते थे हम लोग? How do we compare the rational numbers? How do we compare the rational numbers? पहले तो जैसे कंपैरिजन करते हैं वैसे डिनोमिनेटर सेम करके. डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा. किसका? 4 और 8 का. Denominators का. 4 and 8 नहीं, denominators का है. So first we have to find out the LCM of denominators. बट उससे पहले मेक श्योर करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी डिनोमिनेटर इज सपोज टू बी पॉजिटिव. दैट इज द फर्स्ट थिंग. फिर डिनोमिनेटर के बीच में एलसीएम लो. एलसीएम लेके क्या करते थे? फिर जो एलसीएम आएगा वो 4 के टेबल में जिस नंबर में आता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर एलसीएम बना. दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बनाते थे. कॉमन डिनोमिनेटर हैविंग इक्वल और डिफरेंट डिनोमिनेटर. फिर उसके बाद जो न्यूमरेट कॉमन डिनोमिनेटर हैविंग इक्वल और डिफरेंट न्यूमरेटर. फिर उसके बाद न्यूमरेटर जो बड़ा है उसको हम लोग कंपेयर करते थे. सबसे पहले क्या करना है? पॉजिटिव डिनोमिनेटर में बनाओ. फिर एलसीएम लो किसका? डिनोमिनेटर का. फिर सबका डिनोमिनेटर कॉमन करो एलसीएम जितना, और फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करो. ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. लेट्स सी. Compare these two. Everyone be seated properly. This is class, not your home. Compare these two, quick. First step, make denominator positive. तो ये जो है रेशनल नंबर, उसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करो. चेंज द साइन. माइनस. तो -7/8 पॉजिटिव हो गया. अभी कंपेयर करना है -5/6, ये दोनों के बीच में. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टेप, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 8 and 6. 8 and 6 का एलसीएम लो.
Sir, Hmm. -7/8 is greater than -5/6. What is the LCM of 8 and 6? 48. वेरी गुड 24 नहीं है क्या? 24 दोनों के टेबल में नहीं आता है? सर आता है पर मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, मैंने नहीं बोला है। फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज एक्सेप्टेड, इधर नॉट। चलो, सो 24 इज द एलसीएम। -7/8 को 24 डिनोमिनेटर में बनाओ। 8 3 जा 24, 7 3 जा -21, -7 3 जा -21, -5/6, 4, 24 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो -20। नाउ टेल मी, -21 बड़ा या -20 बड़ा, कौन बड़ा? -20. So that means -7/8 is smaller than -5/6. क्या सर्वम, तुम बड़ा बोल रहा था ना, ग्रेटर बोल रहा था ना? क्या हुआ? नहीं सर, sir, I forgot that -40 is greater. So -42 -40, -42 is lesser, but don't follow this method in rational number, कभी गलती कर बैठोगे। Better is LCM. Switch on the camera. Sir, my camera is on only. What about others? बंद क्यों कर देते हो? सर चालू ही है। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता आप लोग का चेहरा? एक दूसरे को दिखाई देते हैं क्या? Ashik, can you see them? Don't be a friend. एक मिनट. Huh? Can you see the Sarvam? Sarvam? हाँ सर, सबके कैमरा What about Sarvam? ऑन है. What about Sarvam? सर्वम भी दिख रहा है. Very good. मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर चलो नेक्स्ट। इंटरनेट प्रॉब्लम. असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। चलो, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट अस मेक डिनोमिनेटर्स इक्विवेलेंट, इक्वल। सबसे पहले मेक श्योर करो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? 3/7। इसका दूसरे का -3/2 और तीसरे का -3/4। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, विच इज पॉजिटिव होना चाहिए। वापिस सबका कैमरा ऑफ हो गया? हाँ, नाउ इट इज ओके। चलो, पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर दिया, फिर एलसीएम लो। What is the LCM of 7, 2 and 4? 28. Very good. Seven twos are 14, twos are 28.
तो इसको 28 बनाना है तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यहाँ पे 28 बनाना है तो 14 से मल्टीप्लाई करो, -42, यहाँ पे 28 बनाना है तो -42. Now we can compare. सही है गलत है? Is it correct or wrong? सर गलत है। क्या गलत है? सर 7 3 से 21 आता है। अच्छा 21 आता है तो लो फिर। नाउ कंपेयर। विच वन इज असेंडिंग में, तो सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखो। सो -3/2। नेक्स्ट ये वाला तो -3/4। नेक्स्ट ये वाला तो 3/7। दिस इज द आंसर। एनी क्वेश्चन? नो सर। तो ये सही है गलत है? फॉल्स। फॉल्स। 0 is a whole number but it is not a rational number. It is rational number. Given statement is false. Correct? वो भी rational number है. All whole numbers are rational numbers. Then हमने सीखा था rational number on number line. This is what we learned in our previous class. We learn how to represent integer as well as rational numbers. Let's review. Suppose this is a number line. O is a point, let's say it is 0. फिर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, बट मेक श्योर करो दे आर इक्वल डिस्टेंस एंड दैट इज नोन एज अ यूनिट लेंथ. A, B, C, D, E are positive integers, right hand side. उसी तरह A dash, B dash, C dash, E dash are negative integers on left hand side of 0. Same way we can represent fraction number also, rational number also. हमने एक दो लास्ट टाइम सीखा भी था. फॉर एग्जाम्पल 3/4, तो 3/4 इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव. दैट मीन्स 0 के लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड आएगा. राइट साइड. तो वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? 1 और 0 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे और थर्ड वाला पार्ट होगा ये 3/4. 0 और 1 कितने पार्ट्स इक्वल करना है? 1 2 3 4. करेक्ट? नहीं, नहीं, ये 5 हो गए. ये 5 पार्ट्स हो गए. चलो तो 0 और 1 कितने पार्ट्स करना है? सर 3 लाइंस करेंगे. 3 लाइन्स. तो 1 2 3 लाइन्स. फिर
हाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, न्यूमरेटर में जो थर्ड है, ये 4 इक्वल पार्ट क्या, ये थर्ड वाला पार्ट इज 3/4, करेक्ट, दिस इज व्हाट वी लर्न। उसी तरह प्लीज ड्रॉ दिस, चलो आपकी बुक में ये वाला ड्रॉ करो, -5/8। प्लीज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट -5/8। पहले तो ये लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड आएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आएगा। तो किसके किसके बीच में आएगा, विच आर द नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा? 0 और -1। अभी भी खाया कर बैठे बैठे। तो कैमरा से दूर जाएगा तो कैमरा भी घूमता रहेगा, डोंट वरी। 0 और -1, so how many equal parts we will do? 8। 8। 8 तो फिर -5/8 कहां पे आएगा? सर पहले तो 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे, फिर 0 से काउंट करना चालू करेंगे, फिफ्थ पार्ट जो आएगा वो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 करना पड़ेगा ना, बट दिस इज नॉट इक्वल। तो चलो 0, फिर कितना करना, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो फिर -1 से, फिर 0 से काउंट करना चालू करेंगे 0 से करेंगे तो और 1 0 2 से 3 4 एंड दिस वन इज द -5/8, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। सो 0 और -1 के बीच में, और 0 से स्टार्ट करना है हमेशा। 0 से लेफ्ट साइड या 0 से राइट साइड जाना है। -1 से इस साइड मत जाओ। प्लीज रिप्रेजेंट हाफ एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। चलिए सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, straight line, make 0, let's say this is O, half पॉजिटिव साइड आएगा, -1/2 नेगेटिव साइड आएगा। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, तो 1/2 कहां आएगा? वन बाई राइट साइड। सर 0 और 1 के बीच में। अच्छा, तुम्हारा खाना खत्म हो गया सर्वम? खाना खत्म हो गया? हाँ हाँ ओके, चलो ठीक है, तो अभी बोलोगे तुम। सो दिस इज योर A डैश विच इज 1/2, और -1/2 कहाँ आएगा? B dash which is -1/2, correct? चलिए ये वाला खुद करो, 2/3 एंड -2/3।
Draw a line first. Take a point O या 0 on it. Let's say that represents 0. Draw a line. This is 0. इस साइड में 1, लेफ्ट हैंड साइड में -1. सर हो गया. Yeah, how many parts we have to do? सर 3. So सर बीच में 2 लाइन. हाँ ठीक है, तो ये इसको क्या नाम दो? A डैश, A डबल डैश. तो ये 2/3 कहाँ आएगा? ए डबल डैश में. A डबल डैश इज 2/3. उसी तरह 0 और -1 यानी O एंड B कितने पार्ट्स करो? 2, 4. 3 कोई पार्ट. हाँ चलो, B डैश, B डबल डैश. तो -2/3 कहाँ आएगा? B double dash. So this is -2/3. Very simple. चलो इसको रिप्रेजेंट करो. सबसे पहले 13/5 ये कहाँ आएगा? 2 1/5. 2 1/5 क्या होता है? 2 whole 3/5. 2 whole 3/5 minus 13/5 minus 13/5. पहले इसकी बात करेंगे भैया, उसके बाद आगे. या -13/5 कहाँ आएगा? Plus 2 whole 3/5. -2 whole 3/5. क्या -2 को होल बोलोगे? नो. तो -2 इंटीजर 3/5. तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको कौन नहीं लिख सकते. तो फिर कैसे लिखेंगे? क्या गलत किया है? सर पता नहीं पर नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? सर ऐसा कुछ है ही नहीं. नेगेटिव में होता ही नहीं. तो इसको लिखना है तो इस तरह आप लिख सकते हो, मेक अ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रख दो. हाँ. ओके, सो -13/5 को लिखना है तो डोंट राइट -2 3/5. Always write minus sign inside the bracket 2 whole 3/5.
बोला जाएगा 2 होल 3/5, बट ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन. So write like this. Don't write -2 3/5. It's wrong. चलो, तो सबसे पहले तो 0 को हमने रख दिया ओ. सो ये पहला 13/5 का मतलब है 2 होल 3/5. तो इसका मतलब 2 के बाद आएगा. तो ये 1, ये 2, फिर 3. सो 2 एंड 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स वी डू? 5 equal parts. 5 इक्वल पार्ट्स. सो पहले 5 इक्वल पार्ट्स करो. 1 2 3 4 एंड 5 हो गया. चलो, इक्वल नहीं है मेरा वाला. फिर उसके बाद कहां पे रखेंगे? लेट्स से दिस इज, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया. सो 13/5 कहां आएगा? 2 होल. तो 2 होल ये हो गया. अभी 3/5, तो 5 पार्ट तो हमने कर दिया. तो थर्ड पार्ट पे चले जाओ. 2 के बाद थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस. सो दिस इज योर 2 होल 3/5. या तो उसको लिखो 13/5. दिस पॉइंट ए डबल डैश या जो बोलना है बोलो. उसी तरह इसका मतलब क्या है कि आपको नेगेटिव साइड जाना है 2 -2 एंड -3 के बीच में. तो दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3. -2 एंड -3 के बीच में गो फॉर 5 पार्ट्स. तो उसका 5 पार्ट करो. 1 2 3 4 एंड 5. उसमें -2 से -3 की तरफ जाओ. उसमें थर्ड पार्ट, दैट इज दिस, दैट इज -13/5. This is your C double dash, for example. So इसको पहले, सबसे पहले convert like this. -18/7. तो सबसे पहले माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट 7, then 7 2s are 14 and 4. सो -2 एंड -3 के बीच में 7 इक्वल पार्ट्स. उसमें -2 से टूवर्ड्स -3 फोर्थ पार्ट इज -18/7. इज इट क्लियर? ये गलती कभी नहीं, गलती मत करना. ये वैसे तो आप लोग गलती करते ही रहते हो. क्या फर्क पड़ता है 60 मार्क्स आए या 65 मार्क्स आए? कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा अपने को. छोटी पे वो तो 35 मार्क पे बैठा है आराम से. वो भी 35 मार्क्स को समझ में आता कि नहीं आता? 35 मार्क. हाँ विवान, सुनाई भी नहीं देता है क्या?
35 मार्क कोई मार्क्स होता है क्या? आज मैं जो एक्सरसाइज दूंगा, यू हैव टू सबमिट मी ऑन मंडे, मीन्स मंडे, एंड एवरीवन हैज टू सबमिट, नो फॉलोअप. फुल स्केप पेजेस लो, उसमें एक्सरसाइज लिखो, आज का डेट मारो, एक्सरसाइज नंबर भी मैं दूंगा उसको, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2 जो भी है वो लिखो, आज का डेट, राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, एंड सबमिट मी ऑन मंडे. मंडे मीन्स मंडे, 13 तारीख. और इस बार मैं जबरदस्त आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं, परेशान कर दूंगा. अभी ये क्या मार्क्स लेके आ जाते हो? 80 आउट ऑफ 80 क्यों नहीं आता है? चलिए नेक्स्ट एडिशन. अच्छा, एडिशन में हमने क्या सीखा था? रेशनल नंबर सपोज 4/5 एंड 7/9, इसके बीच में एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन बताना सर पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन. अभी फ्रैक्शन की जगह पे ये -7/9 है तो क्या करोगे? उसको थोड़ा फ्रैक्शन बोलोगे. डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्विवेलेंट. हमें डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करना है, तो हो सकता है रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम ही हो. अगर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर के बीच में एडिशन कर दो, डिनोमिनेटर तो सेम है. फिर उसके बाद सिंप्लीफाई एंड कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले करो सबसे पहले, देन just add the numerators, reduce to simplest form. For example, -2/9 -16/9. Denominators are positive, no common factor other than 1. Denominators are same, तो न्यूमरेटर के बीच में एडिशन कर दो, -2 plus -16. That means remove the bracket, -2 -16/9 -18/9. ये हो गया, एडिशन हो गया. फिर उसके बाद गो फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए गो फॉर डिवाइडिंग बाय कॉमन डिवाइजर. सो -2/1 विच इज नथिंग बट -2. ये हमने सीखा था. सेम डिनोमिनेटर्स, इफ इट इज डिफरेंट डिनोमिनेटर्स तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, देन मेक इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर, एलसीएम जितना बना दो. फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, एडिशन करो जैसे आगे किया. चलो लेट्स डू इट, लेट्स रिकॉल क्विकली. टेल मी द आंसर. बी फास्ट. सर आंसर 12/5. क्या आंसर है? 12/5. 12/5.
चलो डिनोमिनेटर्स तो उसके पॉजिटिव ही है और कॉमन भी है, सेम ही है, तो न्यूमरेटर के बीच में एडिशन कर दो. If I remove the bracket, minus 7, 19 minus 7, so 12 by 5. गुड. चलो, कुछ तो याद है, थोड़ा थोड़ा तो याद है. लेट्स सी. What is the answer, Vivan? Sir, my answer is minus 7 by 48. Sir, Yeah. same answer. Okay. What about others? बाकी लोग का क्या आंसर है? Sir, Yeah. sir, same answer. Sir, Yeah, yeah. I have karate class. May I leave? Yeah, yeah, please. Yeah. Same answer. What about Ara? सर ओके, चलिए लेट अस सी. सो सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. -9/16 प्लस 5/12. डिनोमिनेटर इज सपोज टू बी पॉजिटिव. फिर उसके बाद 16 और 12 का एलसीएम कितना आया? एलसीएम इट इज 48. 48 सो 16 3 जा 12 4 जा. इसको मल्टीप्लाई किया तो -27, 5 4 जा 20. सो इट इज इक्वल्स टू 48 -27 plus 20, so it is -7/48. This is the answer. Good. सबका सेम आंसर आ गया. इस बार पहली बार ऐसा हुआ, तो शुरुआत तो अच्छी हो गई. चलो, कि पहली बार सबका आंसर सेम आया. ठीक है, चलो. देन एनी अदर क्वेश्चंस?